সবুজ শক্তি সংবাদে আপনাদের স্বাগত। সাথে রয়েছি আমি শবনম। দেখে নেব এই মুহূর্তে আমাদের হাতে থাকা গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ। মুম্বাইয়ের কেন্দ্রীয় হজ কমিটির কার্যালয়ে দুদিনের ভার্চুয়াল প্রশিক্ষণ শিবির সম্পন্ন। করোনা এবং ওমিক্রনের বিধিনিষেধ মেনে হজ যাত্রীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার পরামর্শ ভারত সৌদির প্রতিনিধিদের। করোনার তৃতীয় ঢেউয়ের মাঝে অতি সতর্কতামূলকভাবে মুম্বাইয়ের মোহাম্মদ আলী রোডের কেন্দ্রীয় হজ ভবনের সভাকক্ষে দুদিনের হজ প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত সম্পন্ন হয়। হজ কমিটি অফ ইন্ডিয়ার ব্যবস্থাপনায় 2022 সালের অর্থাৎ 1443 হিজরির পবিত্র হজ যাত্রীদের সুবিধার্থে দেশের প্রতিটি রাজ্যের বিশেষ প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য এই প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় হজ ভবনে উক্ত প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হয়েছিল গত শনিবার, শেষ হয়েছে রবিবার বিকেলে। বর্তমান সময় মহারাষ্ট্র তথা দেশের অন্যান্য রাজ্যে করোনা এবং ওমিক্রনের মারাত্মক ভয়াবহতার জন্য প্রশিক্ষণ শিবিরে সীমিত প্রশিক্ষণার্থীদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। বেশিরভাগ রাজ্যের প্রায় 90% প্রশিক্ষণার্থীরা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে শিবিরে অংশগ্রহণ করেছেন। শিবিরের প্রথম দিন মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু উন্নয়ন বিভাগের মন্ত্রী মুক্তার আব্বাস নাকভি, কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু উন্নয়ন বিভাগের যুগ্ম সম্পাদক নিগার ফাতেমা হোসাইন, রিসার্চ পার্সন তথা নোডাল অফিসার সৈয়দ এহসাস আহমেদ সহ অন্যান্যরা। এছাড়াও ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে সৌদির ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শহীদ আলমও প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশগ্রহণ করেন। তারা সবাই 2022 সালের পবিত্র হজ যাত্রার জন্য নীতি নির্দেশিকা সবার সামনে তুলে ধরেন। বিশেষ করে করোনা এবং ওমিক্রনের ভয়াবহতার জন্য ভারত এবং সৌদি আরবের তরফে জারি করা নতুন বিধিনিষেধের উপর গুরুত্ব আরোপ করে বক্তব্য রাখেন। বিশ্বজুড়ে করোনার তৃতীয় ঢেউ এবং ওমিক্রনের সংক্রমণ দেখা দিলেও এবছর পবিত্র হজ পালনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সৌদি সরকার। এমনটাই জানিয়েছেন সভায় অংশগ্রহণকারী ভারত সৌদির প্রতিনিধিরা। সেই মতে হজ যাত্রীদের কাছ থেকে অনলাইন যুগে দেশ জুড়ে চলছে আবেদন প্রক্রিয়া চালিয়ে যাওয়া। মহামারীর জন্য হজ যাত্রীদের কোনো ধরনের যাতে বাধা সৃষ্টি না হয় তার জন্য দুই দেশের মধ্যে সবসময় যোগাযোগ রক্ষা করে চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে বলে জানান। এছাড়াও ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে মুম্বাইয়ের কেন্দ্রীয় হজ ভবনে দুদিনের প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত সম্পন্ন করার সময় প্রশিক্ষণার্থীদের তাদের নিজ নিজ রাজ্য বা জেলায় বর্তমান সময়ে হজ পালনের সব ধরনের গাইডলাইন মতে হজ যাত্রীদের প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ দেওয়ার আহ্বান চালান ভারত সৌদির প্রতিনিধিরা। এদিকে হাইলাকান্দির জেলা হজ কমিটির যুগ্ম সম্পাদক তথা সর্বভারতীয় মাস্টার ট্রেনার হাফেজ আবুল হোসেন মাজার ভুঁইয়া দুদিনের ভার্চুয়াল প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশগ্রহণ করে জানিয়েছেন, পবিত্র হজ যাত্রার প্রাক্কালে যাত্রীদের নিয়ে দুই দেশের অনলাইন মিটিং মোটামুটি ফলপ্রসূ হয়েছে এবং সৌদি সরকার ও ভারত সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের তরফ থেকে জারি করা সব ধরনের বিধিনিষেধ মেনে এবছর হজ যাত্রীদের প্রশিক্ষণ এবং হজ যাত্রা শুরু করা হবে বলে আশাবাদী। হাইলাকান্দি থেকে ইবাদুর রহমান মজুমদারের প্রতিবেদন, সবুজ শক্তি। छोटी नेमत है लेकिन बहुत अहम नेमत है, वो है सेहत और तंदुरुस्ती। इन नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करना है, इनकी इबादत भी करना है। देखो कुरान में फरमाया नेमतों पर शुक्र करने से अल्लाह नेमतों की सिक्योरिटी अदा करते हैं और उसमें इजाफा करते हैं। फरमाया लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर तुम वाकई मेरी नेमतों का शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हारी नेमतों को न सिर्फ सिक्योरिटी दूंगा बल्कि उसमें इजाफा करूंगा। जो अरबी जानते हैं वो समझते हैं कि लअज़ीदन्नकुम नून सकीला अल्लाह ने फरमाया बड़ी ताकीद से कि मैं जरूर उसकी नेमतों में इजाफा करूंगा। वलइन कफरतुम, और अगर तुम नाशुक्री करोगे मेरी नेमतों का, तो नेमतों की नाशुक्री करोगे तो जान लो कि मेरा अजाब बड़ा सख्त। नेमतों का शुक्र ये नहीं है कि आदमी खाना खाए मगरिब के बाद और नमाज पढ़कर अल्लाह शुक्र करके नमाज छोड़ के सो जाए। हर नेमत का शुक्र, हर नेमत अमानत है आपके पास, और हर नेमत का शुक्र ये है कि उस नेमत को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इस्तेमाल करें। जैसे आँख की नेमत है, आँख की नेमत बड़ी नेमत है, जिनको आँख नहीं है उससे पूछो कितनी बड़ी नेमत है। इसका शुक्र ये है कि इससे आप अच्छी इस किताबों की स्टडी करें, कुरान पाक का मुताला करें, अच्छे लोगों की सोहबत में रहे। माँ बाप को देखना इबादत है मोहब्बत की नजर से। बुरी चीजों से और जहां देखने से मना किया उससे बचे, ये आँख का शुक्र है।
तो मैं अर्ज कर रहा था कि 4 नेमतों पर हाजियों को कहिए आप जिंदगी भर शुक्र अदा करें। पहली नेमत जो सबसे बड़ी है वो ईमान और इस्लाम की नेमत। दूसरी नेमत जो है वो जिंदगी है, और तीसरी नेमत जो है जो उससे छोटी है इसकी कदर करना चाहिए मगर वो है सेहत और तंदुरुस्ती। तंदुरुस्ती 1000 नेमत है। हदीस पाक में फरमाया 2 नेमतें ऐसी है जिसमें बहुत से लोग नुकसान में हैं। नेमतान मग़बूनुन फीही कसीरुम मिनन नास अस्सिहत वल फराग। 2 नेमतें के सामने रहा होगा। लोग कहते हैं कि 100 साल पहले ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन उस वक्त इतनी ज़्यादा तादाद में लोग हज पे जाते भी नहीं थे और इतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं थी। हमने कई उसमें चेंजेस किए, कई बेहतरी के लिए हमने हज के काम किए और हमारी कोशिश थी कि, और कोशिश को हमने कामयाब भी करके दिखाया कि हम 100% हिंदुस्तान के हज के प्रोसेस को डिजिटल करें, और वो करके दिखाया हमने। इस बार भी मोबाइल ऐप के ज़रिए हज एप्लीकेशन जो आई हैं वो बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने मोबाइल ऐप के ज़रिए हज की एप्लीकेशन दी हैं। लगभग 55-60 हज़ार से ज़्यादा एप्लीकेशन जो अब तक आई हैं उसमें बहुत बड़ी तादाद में मोबाइल ऐप के ज़रिए आई हैं, ऑनलाइन तो सभी आई हैं। इस बार जो है वो लगभग 36 से ज़्यादा ख़वातीन हमारी बहनें ट्रेनर्स के तौर से जा रही हैं। ये मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहला मौका होगा कि इतनी बड़ी तादाद में जो ख़वातीन ट्रेनर्स हैं उनको भी हज कमेटी ऑफ इंडिया ने जोड़ा है, और मैं तो कहूँगा कि और नंबर होने चाहिए। मैंने पिछली बार भी कहा था कि नंबर इसके बढ़ने चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ 2 लाख जाते हैं तो लगभग 50% ख़वातीन जो है वो हज पे जाती हैं। तो नंबर और बढ़ने चाहिए और ज़्यादा लोग इसके लिए इसमें ट्रेनर्स में रखे जा सकें, इसी कोशिश है। हालांकि हज की जो एप्लीकेशंस हैं वो 31 जनवरी लास्ट डेट रखी गई है, और 31 जनवरी तक मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें बहुत क्लियर होंगी। और इस बार कई चेंज हुए हैं, जैसा कि अभी आपने इसमें देखा कि पहले कुछ ऑप्शंस हुआ करते थे, लेकिन इस बार एम्बार्केशन पॉइंट भी हमने 21 की जगह पर सिर्फ 10 एम्बार्केशन पॉइंट्स के ज़रिए ही हज पर लोग इस बार जाएंगे। और उसका कई चीज़ों को ध्यान में रख करके, कुछ वहाँ के जो एयरपोर्ट्स हैं उनको ध्यान में रख करके, कुछ और भी चीज़ें हैं उनको ध्यान में रख करके ये किया है। और हर एम्बार्केशन पॉइंट से अलग अलग जगह से इसमें जो फार्म है उसमें भी आपको इसमें शायद डिटेल दिया होगा उन्होंने, लेकिन मैं फिर भी एक बार आप लोगों को दोहरा देता हूँ कि आपको जानकारी भी होगी। वैसे तो सबको ही। এখনকার মতো সংবাদ এই পর্যন্তই। পরবর্তী সংবাদের জন্য চোখ রাখুন আমাদের সবুজ শক্তির পর্দায়। ধন্যবাদ।